Yes, in yesterday lecture, we had discussed the importance of each part of a GI tract, है ना? In that, we discuss the role of stomach, है ना? Stomach क्या करता है? It secrete the hydrochloric acid, है ना? And what is the role of hydrochloric acid? It kill the bacteria, viruses, parasite, whatever they come with the food material, है ना? Again, it help to secrete the enzymes, pepsines, and it convert the pepsinogen to the pepsin, and pepsin, the role of pepsin is helpful for absorption of the protein, है ना? What happen in case when there is a complete or inadequate absence of this hydrochloric acid in stomach? When there is an inadequate or insufficient secretion of hydrochloric acid in a stomach, it may lead, Achlorohydria. no, this condition is called as the achlorhydria or hypochlorhydria, है ना? So what happen in case when there is a insufficient or inadequate secretion of hydrochloric acid in stomach? Coughing, sore throat, running nose. नहीं 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 नहीं, ये नहीं होता है। क्या होता है? when there is inadequate or insufficient of hydrochloric acid in a stomach, it may lead to the indigestion, है ना? क्या digestion होगा क्या proper? Because there is no secretion of hydrochloric acid, so the no secretion of a pepsinogen. Again, pepsinogen, if still if the pepsinogen is secreted, it required the acidic condition, है ना? It required the acidic condition, 3.5 pH लगता है इसको, टू कन्वर्ट द एक्टिव पेप्सिन, है ना? और ये पेप्सिन क्या करता है? ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स एंड हेल्पफुल फॉर द एब्सॉर्प्शन. if if the pepsinogen is not converted to the pepsin in acidic media because the lack of secretion of a hydrochloric acid or a complete absorption, complete absence of hydrochloric acid, so there is no absorption of the protein. Again, whatever the viruses, bacteria, parasite come along with the food that cause the gastrointestinal disturbance or infection, and so these are the consequences or result in resulting due to the absence or inadequate secretion of hydrochloric acid in a stomach, है ना? और ये जो कुछ सिम्टम देखा था हमने, आयंस डिफिशियंसी, देन डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन्स एंड मिनरल्स may lead to the malabsorption nutrition, है ना? May lead to the neurological issue, है ना? तो all these are the condition that cause the achlorhydria, है ना? डाइजेशन ही प्रॉपर नहीं होगा. फिर उसके बाद में हमने देखा था, क्या देखा था हमने उसके बाद में? स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन का रोल देखा था. इट एब्सॉर्ब द मिनरल्स एंड whatever the nutrients by the small intestine, और large intestine क्या करता है? that absorb the water or fluid from the undigested food, है ना? तो each part in a gastrointestinal play the important role. If for a certain reason the activity or the function is hampered, it may lead to the different condition, pathological, uh, lead to the different pathological condition. उसमें से हमने first discuss किया था achlorhydria, है ना? तो when the person is suffering from the achlorhydria, so there are the various symptoms on which, on the basis of that, we can identify the person may be suffering from the achlorhydria. Maybe the iron deficiency lead to the anemia, then vitamin and mineral deficiency. We already know that vitamin deficiency may lead to the different diseases, है ना? जैसा विटामिन सी की वजह से कुछ होगा, विटामिन डी, द then vitamin A, है ना? All these are absorbed through the stomach by the proper absorption, है ना? और proper absorption ही नहीं हो रहा है, digestion ही नहीं हो रहा है, तो may lead to the deficiency of this vitamins, है ना? तो we we may correlate these things or symptom with the achlorhydria, है ना? might be the different reason भी हो सकते हैं इसको, but ये इसको भी consider करेंगे, है ना? So once we know that the person or someone is just suffering from the inadequate secretion or completely absence of hydrochloric acid in a stomach, तो what will be the treatment for that person, है ना? उसके लिए क्या treatment रहेंगे? Antacid. एसिड रहेंगे. एसिड नहीं, एंटा एसिड मीन्स क्या रहता है? ए एंटी, एंट मीन्स द मीनिंग ऑफ अपोजिट, है ना? तो एंटा एसिड नहीं देंगे हम, क्योंकि तो ऑलरेडी हियर द अब्सेंस ऑफ एसिड है यहाँ पर, तो हम इसको यहाँ पर एंटा एसिड नहीं देंगे, यहाँ पे हम उसको एंटी एसेंशियल
एसिड से एसिडिफायर कंपाउंड क्या करेंगे उसको, द सब्सटेंस और Dilute द HCl. कंपाउंड दैट इंक्रीजेस द एसिड. तो व्हाट विल बी द सिट्रिक लाइन ऑफ एसिड, ट्रीटमेंट? नींबू पानी. नींबू पानी भी नहीं बोल सकते उसको, नींबू पानी से कुछ भी नहीं होगा. Dilute HCl. डाइल्यूट HCl करेक्टली है ना, बिकॉज एसिडी उसमें एब्सेंट है, तो उसमें क्या करेंगे हम, द कंपाउंड दैट हैविंग द एसिडिक इन नेचर, उसको क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, है ना. तो यहाँ उसमें से तो that compound, that the class of that compound is called as a acidifier. वो compound, वो class को या वो categories को क्या बोलते हैं, acidifier. That categories is called as the acidifier, है ना. तो what are the acidifiers? The class of drug or category of the drug which are able to increases the acidity, है ना. क्या रोल है इसका एसिडिफायर का, दैट इंक्रीजेस द एसिडिटी, है ना. तो एसिडिटी नॉट इन कॉन्टेक्स्ट विद GIT, बट दिस एसिडिफायर may be used in a various purposes, like in gastric acidifier, in case when a person is suffering from the achlorhydria या hypochlorhydria, तो in that case we prescribe the gastric acidifier, है ना. तो और दूसरा क्लास, द सेम एसिडिफायर में यूज्ड इन केस ऑफ द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, है ना. यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी हम क्या लेते हैं, एसिडिफायर लेते हैं. दैट क्लास इज कॉल्ड एज द यूरिनरी एसिडिफायर, है ना. अगेन इन केस ऑफ द अल्केलोसिस, सिस्टेमिक अल्केलोसिस, इन केस व्हेन द unknowingly or knowingly, when a person taking the more quantity of a sodium bicarbonate, or there is a absence or decreases the level of a carbon dioxide, तो उसकी वजह से क्या होता है, सिस्टेमिक अल्केलोसिस होता है. तो इन दैट केस आल्सो वी सजेस्ट or whatever the pharmacist prescribe the systemic acidifier, है ना. तो सिस्टेमिक मेन टाइम पे पता नहीं क्यों अभी भेजे, दिखा रहा था उधर कोई है ही नहीं अभी. आपके है ना, म्यूट कर लो, आपके जो आपको जो पर्सनल बात करनी है ना आपकी, तो उसमें उस टाइम में म्यूट कर लो आपका माइक, दूसरों को भी है ना उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं, है ना. तो ये जो एसिडिफायर का जो थर्ड क्लास है, सिस्टेमिक एसिडिफायर, व्हेन इट वी यूज द सिस्टेमिक एसिडिफायर व्हेन देयर इज अ सिस्टेमिक अल्केलोसिस. सिस्टेमिक अल्केलोसिस में है ना क्या यूज करते हैं, सिस्टेमिक एसिडिफायर यूज करते हैं. और एसिड, this acidifier, the fourth class of acidifier is acid, as it is the acid like hydrochloric acid or dilute hydrochloric acid. ये क्या है, all these are used in a pharmaceutical aid in preparation of laboratory or what various compound, and also in a quality control, है ना. तो ये these are the class of acidifier that used or able to increases the acidity. ये समझ में आ गया आपको एसिडिफायर कौन क्या है, व्हाट इज द एसिडिफायर एंड द क्लास और टाइप्स ऑफ एसिडिफायर. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. एक सभी का यूज है, बट आवर सिलेबस जस्ट ओनली फोकस ऑन अ गैस्ट्रिक एसिडिफायर, है ना, क्योंकि दिस टॉपिक इंक्लूडेड और कम अंडर द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट. दैट्स व्हाई वी आर मोर फोकसिंग ऑन अ गैस्ट्रिक एसिडिफायर. वी आर नॉट मोर जस्ट फोकसिंग और डिटेल ऑन अ यूरिनरी एसिडिफायर. क्या होता है, दिस रेंडर द एसिडिक यूरिन. इसकी वजह से क्या होता है, इट हेल्पफुल फॉर किलिंग द बैक्टीरियाज और व्हाटएवर द थिंग्स दैट कॉज द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, है ना, और एसिड, है ना. तो देर आर द various kinds of acidifier we used or compound we used in a gastric acidifier. उसमें से आपके सिलेबस में देखा सभी ने, सिलेबस मैंने जो कल शेयर किया, Yes, sir. कौन से एसिडिफायर Yes, sir. सिलेबस में, हाँ कौन सा एसिडिफायर है, देखो आपका सिलेबस. अमोनियम क्लोराइड है, कौन सा है, अमोनियम क्लोराइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. दीज आर द टू एसिडिफायर that are included in your acidifier syllabus, है ना, syllabus में. है ना. So these are the two different compound that specially used in a chlorhydria, that is the ammonium chloride and dilute hydrochloric acid. तो वो देखेंगे वन बाय वन देखेंगे उसको, है ना.
अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का क्या है? द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज NH4Cl। NH4Cl, it is a molecular formula, and molecular weight of ammonium chloride is 53.49 ग्राम पर मोल, है ना, और 53.49 is the molecular weight. Synonym of आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। हाँ, यस सर। Yes, sir. यस। तो ये देखो, सब में पहले तो वन थिंग यू शुड नोट दैट, और वन थिंग यू शुड क्लियरिफाई दैट, इन आवर फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिलेबस में क्या दिया है, एक डिफरेंट पैथोलॉजिकल कंडीशन दिया है, जैसा एसिडिफाई द कैटेगरीज ऑफ द ड्रग वी डिस्कस, और उसमें कुछ ड्रग दिया है ना। तो वो ड्रग का हमको क्या क्या स्टडी करना है? एक तो सब में पहले उसका ना प्रिपरेशन मेथड है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, फिर उसके बाद में यूज है, और यही सब डेटा आपको रिकॉल करना है आपके सेम एग्जाम में, है ना। तो हम वही देख रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड इज द फर्स्ट एसिडिफायर वी यूज्ड इन अ स्टेट ऑफ अक्लोरहाइड्रिया या हाइपोक्लोरहाइड्रिया। तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला? NH4Cl विद द मॉलिक्यूलर वेट इज 53.49 विद द synonym of this ammonium muriate and एमक्लोर, है ना। क्या है सिनोनिम इसका? अमोनियम क्लोराइड का अमोनियम म्यूरिएट और अदरवाइज द एमक्लोर, है ना। द प्रिपरेशन मेथड includes the ammonium chloride is when we treat the ammonia with the hydrochloric acid or neutralize the hydrochloric acid with the ammonia, so that will give the ammonium chloride, है ना। और फिर इसके बाद में whatever the solution get evaporated, we get the final crystal or fine crystal of ammonium क्लोराइड। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, है ना। क्या है मेथड? ट्रीटिंग द अमोनिया बाय रिएक्टिंग द हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद अमोनिया, और just neutralizing the hydrochloric acid with the ammonia, that will give the ammonium chloride। वो solution form में, dissolve form में रहेगा। when this solution get evaporated at a optimum temperature, तो finally we get the fine crystal of ammonium chloride, है ना। और उसको बाद में प्यूरिफाइड करेंगे रिक्रिस्टलाइजेशन बाय द रिक्रिस्टलाइजेशन, है ना। The second method for the preparation of ammonium chloride is from the ammonium sulfate, है ना। When ammonium sulfate is treated with the sodium chloride at a higher temperature, है ना। ये दोनों को भी क्या करेंगे? अमोनियम सल्फेट जो रहता है, अमोनियम सल्फेट when ammonium sulfate is treated with a sodium chloride at a higher temperature, this sign indicate the higher temperature, है ना। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे इसको क्या करना है? हीट करना है। तो दैट विल गिव द करस्पॉन्डिंग ammonium chloride, that give the ammonium chloride. First of all, what happen? Formation of ammonia and hydrochloric acid and sodium sulfate क्या होगा? Separate होगा, but internally the ammonia and hydrochloric acid react with each other, and finally we got the ammonium chloride, है ना। तो this is the second method for the preparation of ammonium chloride, है ना, from the ammonium sulfate. So these are the two different method by which we synthesize or able to synthesize the ammonium chloride. Any doubt regarding with this method of a preparation? नो सर। है ना। No, sir. जितने भी whatever the compound in your syllabus, it is very easy to prepare or require the few steps or few times, है ना। जैसा देखो यहाँ पर भी क्या करना है, just take the हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हमने एक बीकर में, उसमें क्या किया? अमोनिया सॉल्यूशन ऐड किया, है ना। और उसको क्या करना है? जस्ट ऐड द अमोनिया सॉल्यूशन अप टू द न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? ये एसिडिक इन नेचर है, और अमोनिया क्या है? बेसिक इन नेचर। तो व्हेन वी ऐड द अमोनिया टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन होंगी, एंड एक सर्टेन पॉइंट पे क्या आ जाएगा? रिएक्शन गेट न्यूट्रलाइज। वहां पर आने के बाद में क्या करना है? हमको स्टॉप कर देना है प्रोसेस, और व्हाटएवर द सॉल्यूशन जो हमको मिला है, तो उसको इवापोरेट करना है, सब्लिमेशन करना है या इवापोरेट करना है। इवापोरेशन कैसा करेंगे? उसको एट ऑप्टिमम टेम्परेचर पे जस्ट ओपन टू द एयर, तो व्हाटएवर द सॉल्यूशन गेट इवापोरेटेड, और हमको दैट फाइनली गॉट द क्रिस्टल ऑफ अमोनियम
chloride. तो same thing here also, when ammonium sulfate is treated with a sodium chloride, और ये solution दोनों को भी क्या करना है, ये तो आपको solid form में मिल जाएगा, अमोनियम क्लोराइड क्या है, ये solid form में, इसको जब इसके साथ treat करेंगे at a higher temperature, तो finally we got the ammonium chloride, है ना. तो these are the different two method for the preparation of ammonium chloride. देखो यहाँ पे एक image दिख रही है आपको अमोनियम क्लोराइड की, तो अमोनियम क्लोराइड देखो ऐसा दिखता है उसका क्रिस्टलाइन फॉर्म में. हमारे पास है, मुझे तुम्हारे वहाँ का. तो प्रॉपर्टीज, नाउ द नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनियम क्लोराइड, है ना. द नेक्स्ट पॉइंट अंडर विच वी विल डिस्कस द अमोनियम क्लोराइड, द सेकंड पॉइंट इज द प्रॉपर्टीज, है ना. तो प्रॉपर्टीज में क्या रहता है, color, odor, taste, then solubility, all these things we will discuss under the properties. तो इसमें सब में पहली प्रॉपर्टी क्या है, अमोनियम क्लोराइड इज अ वीक इनऑर्गेनिक एसिड, है ना. ये क्या है, एसिड है, वीक इनऑर्गेनिक एसिड है. व्हाई दिस हाइड्रोक्लोरिक अमोनियम क्लोराइड इज कॉल्ड एज द इनऑर्गेनिक एसिड, बिकॉज इट नॉट कंटेन द कार्बन एटम, है ना. तो ये क्या है, वीक इनऑर्गेनिक एसिड है. और अक्लोरहाइड्रिया या हाइपोक्लोरहाइड्रिया में क्या होता है, द कंप्लीट और इनएडिक्वेट सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो वहां पे क्या हो रहा है, एसिडिटी और पीएच कितना रहने को होना, मिनिमम स्टमक का 3.5 to 4 pH रहने को होना. दैट इज द ऑप्टिमम पीएच at which we got the maximum digestion and maximum absorption of the protein takes place, because of pepsinogen is converted to the pepsin at a 3.5 to 4 pH, है ना. if this pH is not maintained, कभी हमने वो pH नहीं maintain किया, तो we can't get the proper breakdown of a protein, so it hamper the absorption of the protein, है ना. that's why I need to maintain the pH in between the acidic range, है ना. that's why we prescribe the ammonium chloride. और ammonium chloride क्या है, ये weak inorganic acid है. जैसे ही हमने ammonium chloride को लेते हैं, whatever in different form, like in a granules हो गया, like in a tablets हो गया, like in a solution form हो गया, जैसे ही हम उसको लेंगे तो क्या होगा, वो that get into the entry into the stomach, और stomach का pH क्या कर देगा, वो change from alkaline or neutral to get the acidic, and that at that pH we got the maximum result, that is the absorption as well as the breaking down of the proteins, और absorption क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा उस टाइम में, है ना. तो this is the weak inorganic acid. then next property is it is a white crystalline powder or fine powder, fine crystal, है ना. तो ये कैसा है, ये this is not a crude, it is a white crystalline powder है. कैसा है ये ammonium chloride, white crystalline powder, है ना. then if you see the solubility is freely soluble, it freely soluble in water and slightly soluble in alcohol, है ना. freely soluble in water and slightly soluble in alcohol. आपका हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया हुआ, मैडम ने लिया आपका हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया? नो सर. है ना. तो आप हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया में, हाँ, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया, एक्चुअली फार्माकोपिया क्या है, ये व्हाट इज अ फार्माकोपिया? ईच कंट्री, हर एक कंट्री का है ना कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, बाय इट इज मैंडेटरी टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना. अभी कभी नहीं हमने कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो किया तो क्या होगा, क्राइम हो जाएगा डेफिनेटली, है ना. तो ईच कंट्री हैविंग द देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक में लिखा रहता है ना. Yes, sir. Similarly, each religion having their own religious scriptures, है ना. जो हर एक रिलीजन के स्क्रिप्चर्स रहता है, वैसे है ना एक प्रोफेशन का भी है ना, हमारे जो प्रोफेशन का एक स्क्रिप्चर है, दैट इज नोन एज द फार्माकोपिया. वो बुक को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोपिया, है ना. तो हर कंट्री का एक अलग अलग फार्माकोपिया है. जैसा इंडिया का, तो इंडिया का कौन सा रहेगा, इंडियन फार्माकोपिया रहेगा. जैसा श्रीलंका का है, तो श्रीलंका का क्या रहेगा, श्रीलंकन फार्माकोपिया. यूएस का है तो यूएस फार्माकोपिया, यूएस का बोलते हैं उसको, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है. फिर चाइना का क्या है, एक चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना फार्माकोपिया, है ना. तो ईच कंट्री हैविंग देयर ओन फार्माकोपिया. और ये फार्माकोपिया क्या रहती है, दिस इज अ बुक दैट कंपाइल ऑल द ड्रग्स, द इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग इन फॉर्म ऑफ द मोनोग्राफ. कौन से फॉर्म में रहता है इसमें, मोनोग्राफ. और मोनोग्राफ का एज सच मीनिंग क्या है, दिस इज द एवरीथिंग इज रिटर्न
रिटर्न, हर चीज उसमें क्या लिखी रहती है। तो ये जो जितने भी फार्माकोपिया है हर कंट्री के अलग अलग, दैट कंटेन द डिटेल एंड होल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद द ड्रग, उसका स्ट्रेंथ लिखा रहता है, उसका कलर लिखा रहता है, उसका आइडेंटिफिकेशन लिखा रहता है, उसका स्ट्रेंथ लिखा रहता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखा रहता है, एवरीथिंग इज रिटन इन अ मोनोग्राफ। तो उसमें ही कुछ पहले ना एक कुछ एनेक्सर्स रहते हैं, उसमें डिटेल दिया रहता है, व्हाट इज द हर टर्मिनोलॉजी लिखा रहता है। जैसे देखो आपने ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या पिनल कोड जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें सब डिटेल में दिया रहता है, व्हाट इज द राइट्स क्या रहते हैं, राइट्स क्या रहते हैं, सभी सभी डिटेल दिया रहता है। तो सेम थिंग इज आल्सो रिटन इन अ फार्माकोपिया। जैसा भी हमने यहाँ पे ना वेगली क्या बोला है, सोल्यूबल इन वाटर और फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर, ये सोल्यूबल इन वाटर, फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर, पार्शियली सोल्यूबल इन वाटर, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी सेम है कि सब एक ही है? डेफिनेटली अलग 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 है ना। तो ये अलग अलग दैट कंट्रीब्यूट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे यहाँ पे दिया है फ्रीली सोल्यूबल, राइट 1 ग्राम इन 10 ml इज फ्रीली सोल्यूबल, है ना। जैसा उससे थोड़ा वो तो आपको है ना डिटेल फार्माकोपिया में मैडम डिस्कस करेंगे। तो ईच टर्म हैविंग द इंपॉर्टेंस, है ना। तो यहाँ पर जो अमोनियम क्लोराइड है, इट इज फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर, मींस कंप्लीटली सोल्यूबल इन वाटर, है ना। Partially means not completely soluble in water, but the ammonium chloride is completely soluble in a water, immediately soluble in water, और slightly soluble in water। और अल्कोहल में कैसा है, सॉरी अल्कोहल में कैसा है, slightly soluble in alcohol। This is the solubility of ammonium chloride। Next one is it is hygroscopic in nature, it absorbs the moisture from the atmosphere, है ना। तो once we know that it absorbs the moisture from the water, from the इन्वायरमेंट, तो क्या नीड है इसको, इट शुड बी स्टोर इन अ एयर टाइट कंटेनर एयर टाइट ड्राई कंटेनर, ड्राई ड्राई कंटेनर, है ना, ड्राई या एयर टाइट कंटेनर, है ना। अदरवाइज इफ वी जस्ट ओपन द बॉटल ऑफ अमोनियम क्लोराइड तो क्या होगा, इट एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द इन्वायरमेंट, और जो उसका स्ट्रेंथ है या जो उसकी पोटेंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगे। एंड आफ्टर दैट वी कांट गेट द रिजल्ट। हमने फिर कितना भी लिया, जैसा देखो सोडियम बाइकार्बोनेट जो रहता है, इनो की बोतल देखा होगा आपने या उसका सैचे देखा होगा, तो है ना जैसा सैचे में कुछ ज्यादा ही क्वांटिटी आता है, या हमने ना फॉर वाइल जस्ट कंसिडर हमने पूरा सैचे नहीं लिया है, और हमने क्या किया उसमें से पार्शियली या हाफ परसेंट किया, हाफ अमाउंट क्या किया आज ले लिया, और वो सैचे को जस्ट एज इट इज क्या कर दिया, हमने उसको रख दिया। यूजुअली किधर रखते उसको, हम ओपन स्पेस पे रख देते या फ्रीज पे रख देते, और जब हमने सेम सैचे कभी सेकंड डे में यूज किया तो वी कांट गेट द रिजल्ट व्हाट एवर वी गॉट द प्रीवियसली, है ना। तो ऐसे ही है ना, तो दिस इज आल्सो द हाइग्रोस्कोपिक नेचर। तो क्या होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, जैसा ये भी इंस्ट्रक्शन आपके ना मोनोग्राफ में इंक्लूड है, जैसा हम जब है ना आईपी देखेंगे, इंडियन फार्माकोपिया देखेंगे, या उसमें से जो मोनोग्राफ देखेंगे अमोनियम क्लोराइड का, तो इन दैट क्लियरली मेंशन दैट इट शुड बी स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर, है ना। और वो इंस्ट्रक्शन हमने फॉलो नहीं किया है, या अदरवाइज है ना क्या होता है, प्रीवियसली व्हाट हैपन, पहले डिस्पेंस करते थे द फार्मासिस्ट टू बी डिस्पेंस द मेडिसिन, है ना। आपने देखा है या नहीं देखा है मुझे पता नहीं है, पर प्रीवियसली क्या रहता है, अभी भी देखो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स रहते हैं या जेडपी हॉस्पिटल्स रहते हैं, उसमें क्या होता है, जो फार्मासिस्ट रहते हैं तो उनके पास में ना मेडिसिन कैसे ब्लिस्टर फॉर्म में रहती है या ऐसी कोटिंग में रहती है, बॉक्स में रहती है, डब्बे में, कोटिंग बॉक्स फॉर्म में बॉक्स में, या बोले तो ऐसे कंटेनर रहता है, उसमें से वो क्या करता है, वॉट एवर द डिपेंडिंग ऑन नीड, उतने वो टैबलेट्स क्या करता है, निकालता है, फिर उसको क्या करता है, पेपर रहता है न्यूज़पेपर, उस न्यूज़पेपर में क्या करता है, उसको रैप करता है और दे देता है, डिस्पेंस करता है वो, है ना। तो सेम थिंग इज प्रीवियसली व्हाट हैपन, प्रीवियसली ना जब मेडिसिन टैबलेट फॉर्म में नहीं रहता था, तो उसको क्या रहता था, उसको टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट करते थे बाय मिक्सिंग द डिफरेंट पाउडर्स, है ना। उस टाइम में ये इफ द सेम थिंग, जब ये प्रोसीजर या ये इंस्ट्रक्शन कभी फॉलो नहीं होती होंगी, तो उस टाइम में बी द जो वट एवर द वी कांट गेट द रिजल्ट, है ना, जब हमको रिजल्ट ही नहीं मिलेंगे उस टाइम में, है ना। तो यू शुड फॉलो द कंप्लीट इंस्ट्रक्शन। इवन आप देखो आपके घर पर भी कुछ ऐसे फॉर्म में, जैसे जैसे थायराइड की मेडिसिन हो गई, या फिर उसके बाद में इनो हो गया, या उसके बाद में जो अलग अलग पाउडर से, तो उसके जो है ना इंस्ट्रक्शन रहते हैं लेबल पे, तो वो पढ़ो आप, आपको समझ में आएगा। तो ईच लेबल हैविंग देयर ओन इंस्ट्रक्शन रहते हैं, अलग अलग इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रहते हैं। जैसे देखो आई ड्रॉप होगा आपके घर पे, तो वो आई ड्रॉप पे क्या क्या इंस्ट्रक्शन है वो सभी ना आप है ना जस्ट कीनली ऑब्जर्व एंड रीड ऑल दिस इंस्ट्रक्शन, तो आपको पता चलेगा, है ना।
Then next property is the odorless, है ना. This is the odorless, not having the any odor, है ना. Odor means क्या रहता है, स्मेल रहेंगी उसकी. तो इसकी कुछ स्मेल है क्या? No, sir. No. No, sir. Odorless. Odorless. Next is the solution. If we dissolve 0.8 gram in a whatever the volume, it give the 0.8% weight by volume of ammonium chloride is isotonic, है ना. वो क्या है, isotonic है. Isotonic with a serum, है ना. एक tonicity है एक blood की. तो when we dissolve or make the preparation of 0.8% of weight by volume of ammonium chloride, its isotonicity is similar to that of the serum. So this is the property of ammonium chloride. Now the next thing is the identification test. इसके बाद में किसका लेक्चर है? सरफराज सर. फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का. एनालिसिस का क्या चलेंगे. हमें ना क्या करेंगे, बस इतना आइडेंटिफिकेशन देख लेंगे उसका, और फिर ना नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या रहता है? दिस इज द एक्चुअली है ना, आपका जब फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा आपका, जब उसमें हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया में, तो ये सभी है ना पॉइंट्स उसमें समझ में आ जाएंगे उस टाइम में आपको. ये सभी प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, और उसके बाद में है ना आइडेंटिफिकेशन टेस्ट. दिस इज द सब हेडिंग व्हाटएवर इंक्लूडेड इन अ मोनोग्राफ, है ना. तो उसमें से ही हमने लिया है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट. तो these are the tests by which we can identify the अमोनियम क्लोराइड, है ना. ये टेस्ट, डिफरेंट टेस्ट है यहाँ पर मेंशन या डिस्कस किया है यहाँ पे, by which we can identify the ammonium chloride. In that the first test is the dissolve the 1 gram of ammonium chloride in a 10 ml of distilled water. क्या करना है यहाँ पे प्रोसीजर में, हमको 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड लेना है, that dissolve in a 10 ml of distilled water, और उसमें हमको few drops of methyl red ऐड करना है. क्या ऐड करना है हमको? मिथिल रेड ऐड करना है. तो जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे अमोनियम क्लोराइड को वाटर में, तो दैट विल गिव द अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना. अमोनियम हाइड्रोक्साइड देगा, और ऑन द बेसिस ऑफ मिथिल रेड वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द पीएच चेंज हो रहा है, तो दैट विल यूजफुल आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ अमोनियम क्लोराइड, है ना. अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसा रहता है? वीक बेस रहता है. तो एक्चुअली तो उसका कलर कैसा रहेगा, ऐसे ये कलर रहेगा उसका, है ना. The next chemical test for identification of ammonium chloride is a silver nitrate. इसमें क्या रहता है? Just take the 0.1 or approximate quantity of ammonium chloride that dissolve in a water, और उसमें क्या करना है, इसको एसिडिफाई करना है विद नाइट्रिक एसिड, है ना. Just take the approximate quantity of ammonium chloride that dissolve in a water and acidify this solution with a नाइट्रिक एसिड, 2 मोलार नाइट्रिक एसिड, है ना. और फिर उसको फाइनली उसमें ऐड करना है आपको 0.4 ml और व्हाटएवर द अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, और उसको क्या करना है, शेक करना है. जस्ट लीव फॉर द 5 मिनट्स. उसके बाद में उसको क्या करना है, 5 मिनट्स लीव, जस्ट लीव द 5 मिनट्स. आफ्टर दैट ऑब्जर्व द टेस्ट ट्यूब. तो यू फाइंड दैट द मिल्की व्हाइट, है ना, डिपेंडिंग ऑन अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन, है ना. तो ये कलर क्या हो जाएगा उसका, चेंज हो जाएगा. If the formation of this color, it confirm that the given compound containing the chlorine or ammonium chloride, है ना. तो ये confirm क्या हो जाएगा, the given compound is ammonium chloride. समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. These are the different identification tests, or these are the different identification tests by which we can identify the given compound, है ना. क्योंकि देखो जैसे अब हमें ना फार्मास्यूटिकल कंपाउंड देखेंगे तो सब सेम नेचर के रहते हैं. जैसे देखो आपको जो है ना बेसन रहता है, बेसन का जो आटा रहता है, या जो व्हीट फ्लोर रहता है, जैसा जो गेहूं का आटा रहता है, तो हमें ना वी कैन इजीली आइडेंटिफाई बाय जस्ट एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से समझ में आ जाएगा. क्योंकि बेसन का जो आटा रहेगा दैट हैविंग द ये समवॉट येलोविश कलर, और ये व्हाइट कलर का किसका रहेगा, गेहूं का रहेगा. बट इन फार्मास्यूटिकल फील्ड all the compound usually 80 to 90%
परसेंट और 90 कंपाउंड क्या रहते हैं, परसेंट ऑफ कंपाउंड इज अ व्हाइट इन कलर, जैसे ये भी क्या है व्हाइट कलर का है, तो हमको है ना देयर शुड बी द वन स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट by which we can identify the given compound. So these are the different tests by which we can identify the compound. जैसा है ना previously first test क्या थी, dissolve in a water, और उसमें फिर क्या करना है, मिथिल रेड ऐड करना है, तो मिथिल रेड का कलर जैसे ही चेंज हो जाएगा, so that confirm the compound is ammonium chloride. Second test is ammonium chloride dissolve in a water, और उसको acidify करना है नाइट्रिक एसिड से, और then add a few drops of a silver nitrate, और उसको क्या करना है, शेक करना है, just leave for the 5 minutes, and after that observe the test tube. If the test tube is a milky white color, this confirm that the given compound is containing the ammonium chloride. So these are the identification test for the ammonium chloride, है ना. तो हम कल इसका फर्दर पार्ट देखेंगे. ऐसे मीन्स क्या रहता है, ऐसे is the procedure by which we can identify the percentage purity, by which we can identify the percentage purity, है ना. जैसे देखो for a while when we go to the market, हम जब मार्केट में जाते हैं to buy the राइस या कोई भी चीज ले लो किराना की, है ना, तो हमें ना जैसे राइस लाने गए या फिर गेहूं लाने को गए, तो हम उसको बोलते हैं क्या 1 किलो पत्थर दो, 1 किलो गेहूं में हमको है ना 10 ग्राम पत्थर दो, बोलते हैं क्या हम उनको, या वो ऑटोमेटिकली फ्री मिलते हैं हमको, फ्री मिलते हैं. फ्री मिलते हैं. मीन्स हमने कभी इफ यू परचेज द 1 किलो ऑफ व्हीट, तो उसमें क्या रहता है 900 ग्राम 990 ग्राम क्या रहेगा उसमें व्हीट रहेंगे, और 10 ग्राम क्या रहेगा उसमें जो वॉट एवर द स्टोन्स रहेंगे, है ना. तो उसकी परसेंटेज प्यूरिटी वो हिसाब से उसकी कैलकुलेट करेंगे. इन द सेम थिंग इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन आल्सो देयर आर द सम इम्प्यूरिटीज कम along with our interested compound. तो वो उसमें ना हमारा एक्टिव कंपाउंड कितना है ये डिटरमाइन करने के लिए हम एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, उसको वो ही प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, एसे बोलते हैं. तो एसे इज नथिंग बट द डिटर्मिनेशन ऑफ द परसेंटेज प्यूरिटी. तो आप कल क्या करेंगे, कल लेक्चर में आपको पूछूंगा मैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसे. एसे थोड़ा सर्च करो ये टर्मिनोलॉजी और मुझे बोलो, है ना. तो मेरे ख्याल से आज अभी बस 2 या 3 मिनट ही बाकी है बस हमारा लेक्चर ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट होने के लिए, और नेक्स्ट लेक्चर भी स्टार्ट हो जाएगा ऐसा 12 बजे. तो एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग विद दिस लेक्चर? No, No, sir. sir. है ना. No. बस हमने आज क्या देखा है, बस अमोनियम क्लोराइड ही देखा है. दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द एसिडिफायर दैट यूज्ड इन अ कंडीशन ऑफ अक्लोरहाइड्रिया या हाइपोक्लोरहाइड्रिया दैट रेंडर द एसिडिटी. जैसे हमने अमोनियम क्लोराइड लिया, व्हाटएवर द प्रिस्क्राइब, जो फिजिशियन डोज हमको सब प्रिस्क्राइब करेगा, डॉक्टर्स जो भी डोज प्रिस्क्राइब करेगा वो डोज हमने लिया, तो दैट इंक्रीजेस द एसिडिटी, और एसिडिटी जैसी मेंटेन हुई तो वी गॉट द कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट, जैसे ना डाइजेशन अच्छे से हो जाएगा, एब्सॉर्प्शन ऑफ द प्रोटीन अच्छे से हो जाएगा, या एब्सॉर्प्शन ऑफ द मिनरल्स अच्छे से हो जाएगा. ऑल दिस थिंग वी गेट, है ना. मैसेज में सभी ने आपका नाम ये किया है क्या, टाइप किया है क्या? नो. तो मैसेज में Yes, sir. अपना नाम टाइप कर दो, और मेरे ख्याल से मीटिंग भी हो जाएंगी, तो मैं इसे सेव कर लूंगा. सर विच बुक शुड वी फॉलो? चटवाल आनंद बोलकर है, चटवाल आनंद. अभी देखो ये बुक का मैंने ना ऑनलाइन भी सर्च किया तो कुछ मुझे पीडीएफ नहीं मिला है, तो मैं क्या करता हूँ दोपहर में आपको इसके ना प्रिंट फोटोज है ना व्हाट्सएप कर दूंगा. हाँ जी सर. ओके. Yes, sir, Yes, sir. please. एक Thank you, मिनट, sir. आपस इस पर से पीडीएफ नहीं शेयर होती होंगी ना इस पर से? नहीं पीडीएफ नो नहीं नो share होती. सर, ग्रुप में सेंड कीजिए ना. हाँ ग्रुप में सेंड कर देता हूँ पीडीएफ. ओके थैंक यू सर. चलेंगे, थैंक यू. यस नाउ ज्वाइन द, आप है ना सरफराज सर का लिंक जो शेयर किया है वो ज्वाइन कर लो अभी. हाँ